Hello friends, this is Veer from Saraswati Classes, Narol, Ahmedabad. Friends, as you know, in previous lecture we have discussed about admission of partnership and what are the basic reasons that we have a need of admitting a new partner in our business. Today we are going to take a big question related with this chapter. Friends, this is a question which is to be very much usual with chapter number 4. We have discussed earlier on reconstruction of partnership. One or two points they are to be known as new ones. Other one, all the points which we have seen in earlier chapter, they are related with the same. So we are just discussing first of all the trial balance sheet. After that, we'll discuss the additional information or the adjustment entries. See the question number taken for you here from the exercise. Question number 8 from Abha and Beena. It is given in the book. See, I just want to tell you one thing that when we are going to solve account or mathematics kind of sums, एट दैट टाइम आप अपने साथ बुक्स को साथ खास में खोल के रखिए सो दैट आप जब भी क्वेश्चन देख के फिर सॉल्व करोगे ना तो इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू टू सॉल्व द सम. तो बीच बीच में वीडियो को रोक सकते हैं आप लोग और वीडियो को रोक करके आप बुक के हिसाब से क्या करना स्टडी करते रहना. आई मीन क्वेश्चन को देख कर फिर सॉल्यूशन चेक करते रहना. ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. आभा एंड बीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit and loss ratio in 2:1. You have already given profit and loss ratio, that is 2:1. Right friends, so after that it is to be said their balance sheet on 31st March 17 was as under. They admitted Rushil as a new partner on 1/4/17 on the following conditions. So एडजस्टमेंट को हम बाद में देखते हैं. पहले हम जो ट्रायल बैलेंस शीट आपको दी गई है उसकी जो एंट्रीज हैं उसे हमें कहाँ कहाँ पोस्ट करना है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं. फ्रेंड्स, एज वी ऑल नो दैट इन एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप वी नीड टू ड्रॉ 4 accounts. Which are the 4 accounts? The first one is the revaluation account, which is to be needed at the time of when we do entries of adjustment entries. At that time assets increase or decrease, those entries, liabilities increase or decrease, those entries are to be shown over here. Second account is partners capital account. Third, cash and bank account. In revaluation, in reconstruction partnership, this is not account, this is the account which is not used over there because no cash transaction and bank transaction are to be done over there, because in a reconstruction we just change the profit and loss ratio. But here in admission of partnership, as I defined you in previous lecture, that when new partner enter in business, he brings some cash with him. So this is basically needed over here, and a balance sheet over there. See, we are going to discuss about trial balance sheet. You can see capitals are there. Abha 80,000 and 60,000. We all know that capital have a credit balance. So on the credit side of capital account, we will write here by balance brought down or opening balance 80 and 60,000. Second, you have given general reserve. General reserve is an undistributed profit, and all kind of undistributed profit are to be divided between those old partners. So 18,000 is given to you, which is to be divided in old ratio. Now your old ratio is 2:1. So divide this 80,000 in 2:1, it will be 12,000 and 6,000. The next point I have given, workman compensation fund. वर्कमैन कंपनसेशन फंड का मतलब क्या होता है कि अगर किसी कर्मचारी को, किसी वर्कर को ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स कोई एक्सीडेंटल होता है तो उस टाइम पर हमें उन्हें कुछ क्लेम पे करना पड़ता है. सो यहाँ पर क्लेम के रिलेटेड हमें जितने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो आपको एडजस्टमेंट्स हैं उसमें कोई एंट्री दी नहीं गई है, तो हम क्या करेंगे, जितनी भी अमाउंट है कंपनसेशन फंड की एट द एंड ऑफ द ईयर हम पूरी 4,500 को दोनों पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे. सो हमने 2:1 ओल्ड रेशियो जो है उसमें डिवाइड किया, इट विल 3,000 and 1,500. Similarly, last one you are given investment fluctuation reserve. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मतलब होता है कि भाई इन फ्यूचर आपके इन्वेस्टमेंट में कोई प्लस माइनस हो रहा हो तो हम उसमें एडजस्टमेंट करके यहाँ शो ऑफ करते हैं. बट हमने जब इन्वेस्टमेंट की एंट्री देखी एडजस्टमेंट में तो कोई उसमें प्लस माइनस की एंट्री नहीं दी गई. आप देख सकते हैं बुक में पोस्ट करके देख लीजिए, यहाँ पर कोई एंट्री नहीं दी गई. तो ये एक तरह का फंड है जो हमने बचा के रखा था. ठीक है, सो नाउ द ओल्ड पार्टनर्स विल डिस्ट्रीब्यूट दिस ओल्ड फंड्स 1,500 रिस्पेक्टिवली. फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर वाई वी आर
डिवाइडिंग दीज रिजर्व्स देन वी आर एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर। तो आंसर ये हो जाएगा सिंपल सा कि जब नया पार्टनर आएगा तो सब कुछ नया हो जाएगा। तो जो पुराने वाले फंड्स हैं अगर उसमें भी उस नए पार्टनर को हिस्सा देने लगेंगे तो इट इज़ नॉट टू बी सैड टू बी फेयर, सो मच बेटर। और नए पार्टनर के आने से पहले आपके जो भी रिजर्व्स हैं, सरप्लस हैं, जो भी बेनिफिट्स हैं, आप दोनों ओल्ड पार्टनर्स के वापस में क्या करो, बांट लो, क्योंकि नए पार्टनर के आने के बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या होने वाला है, बदलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बदल जाएगा तो फिर उसमें आपको जो ओल्ड शेयर्स हैं वो आप उसको दोगे तो आप खुद भी उस चीज़ को एडमायर नहीं करोगे कि मेरा प्रॉफिट कोई दूसरा ले जाए। ठीक है, तो नए पार्टनर आने के बाद सब कुछ क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। इसलिए जो पुराना जो कुछ भी इनकम्स हैं हमारी, जो एनीथिंग बट वे हैव इन अवर पास्ट, दैट शुड बी डिवाइडेड बिटवीन दोज ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ ऑन द अदर एसेट साइड गुडविल इज देयर 18,000। फ्रेंड्स सिंपल फंडा ध्यान रखना आपको, जब भी हम एडमिशन और पार्टनरशिप की बात करेंगे उस टाइम पर हमें हमेशा गुडविल जो दी होगी आपकी बैलेंस शीट के अंदर उसे रिटर्न ऑफ कर देना। फर्स्ट ऑफ ऑल ओल्ड गुडविल को, तो हमने वही काम किया, गुडविल को रिटर्न ऑफ कर दिया ओल्ड रेशियो में, दैट इज 12,000 एंड 6,000। आफ्टर देन लैंड बिल्डिंग, दैट इज द एसेट गिवन हियर, लीव वन लाइन स्पेस एंड आउटर कॉलम। नेक्स्ट मशीनरी, सेम चीज़ इन एसेट्स कॉलम दिखा दिया हमने, एक लाइन छोड़ी है उसमें बाहर जाने के लिए। Then after stock is there, we have done the same thing, average transaction. Debtors 24,000 minus bad debts is already given to you, but still there may be some entries, so leave 1 or 2 lines regarding bad debts, debtors. इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कुछ नहीं कहा हुआ था, हमने इन्वेस्टमेंट को डायरेक्टली बाहर निकाल दिया है, कोई इशू नहीं है। कैश एंड बैंक के लिए हमने कैश एंड बैंक अकाउंट बनाया हुआ है यहाँ पे फ्रेंड्स, सो हम क्या करेंगे उसको वहाँ पे दिखा देंगे डेबिट साइड पर। एसेट्स हैं, एसेट की हमेशा डेबिट बैलेंस होती है, और जो लाइबिलिटीज़ हो, जो इनकम्स हो, उनकी बैलेंस कैसी होती है, क्रेडिट होती है, तो फिर जमा साइड लिखते हैं उसको। लास्टली एडवर्टाइजमेंट कंपेन एक्सपेंडिचर, सो विज्ञापन के लिए जो हम कुछ खर्च कर रहे हैं तो वो खर्च हमने पहले कर लिया है न्यू पार्टनर के आने के पहले ना। मैंने जिस तरह कहा, जिस तरह से हम रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, सिमिलरली जो खर्च हमने किया हुआ है इस खर्च को ओल्ड पार्टनर्स के लिए क्या कर लेंगे, बांट देंगे, क्योंकि ना तो कोई हम इनकम नए पार्टनर का शेयर करने वाले हैं हमारी पुराने वाली, और ना ही हम कोई एक्सपेंडिचर जो है हमारे, या फिर एनी काइंड ऑफ अदर थिंग्स विच आर गोइंग टू बी शेयर विद द न्यू वन। ठीक है फ्रेंड्स, सो दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रायल बैलेंस शीट। इतना आप देख लीजिए, अब वीडियो को पॉज करेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर हम मिलते हैं एडजस्टमेंट के बाद। टिल देन आप इसको स्टडी करिए। So friend, let's start the adjustment entries once again. I have done over here. Now just we have a look over there. The Rushil will bring 1 lakh rupees as capital and 24,000 as goodwill in cash. So new partners is coming in the business, he is bringing some capital with him. So how much is bringing 1 lakh rupees? If it is coming the business, so cash account debited 1 lakh rupees to Rushil capital account, that will be 1 lakh rupees. So हम इसको ट्रांसफर करते हैं, पोस्ट करते हैं, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में 1 लाख रुपीस, और रुशिल अकाउंट जो है उसमें क्रेडिट साइड में लिख देंगे 1 लाख रुपीस बाय द नेम ऑफ कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट एज ब्रिंगिंग कैपिटल, और नो नीड टू राइट एनीथिंग। आपको सेकंड दिया 24,000 इज टू ब्रिंग एज गुडविल इन कैश। अब 24,000 बिजनेस में आ रहा है फ्रेंड्स, आप देखो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड, तो कैश अकाउंट के डेबिट में क्या लिखेंगे, 24,000 लिख देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और नाम क्या देंगे, प्रीमियम टू, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ना सेकंड एंट्री जो बनती है इसकी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड 24,000 टू आभा एंड टू बीना अकाउंट। ठीक है, तो दोनों के हम क्या करेंगे, आभा और बीना में इसकी इफेक्ट डाल देते हैं बाय प्रीमियम ऑन गुडविल। आई होप आप लोगों को पोस्टिंग करने आती होगी। और फ्रेंड्स एक चीज आपको बतानी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, सो ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, उसको सैक्रिफाइस रेशियो में क्या करते हैं, आपस में डिवाइड कर लेते हैं। आप सैक्रिफाइस रेशियो कैसे फाइंड करना है, तो उसके लिए 2 ट्रिक्स मैं आपको बता देता हूँ। पहली ट्रिक ये कि जब आपको सम के अंदर न्यू रेशियो नहीं दिया गया है, तो जो ओल्ड रेशियो है उसी में हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही हमारा क्या बन जाएगा, ओल्ड रेशियो जो है वो सैक्रिफाइस रेशियो बन जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स if you have given already the new ratio in the sum like this one, you have already given new one 2 1 2, ये आपको रेशियो दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करेंगे। हाउ टू फाइंड सैक्रिफाइस फ्रेंड्स, वी हैव डिस्कस अर्लियर ऑन इन प्रीवियस चैप्टर्स कि सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आपका ओल्ड रेशियो कितना है, 2/1। ठीक है फ्रेंड्स, सो 2/1 को हम क्या करेंगे, 2/3 माइनस न्यू कितना 22415,
तो 2/5 हम सेक्रीफाइस 5 करते हैं। आप देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने की हुई है, तो 5 2 10 माइनस 3 2 6 10 में 6 किया तो 4/15। सिंपली बीना की बात करते हैं तो 1/3 जो उसका ओल्ड रेशियो है और न्यू रेशियो 1/5 बनता है, तो 5 1 5 3 1 3 5 3 2/15, तो यू गेट 2:1 रेशियो। तो 4:2 आया, उसे हम कट शॉर्ट करते हैं तो ये आएगा आपका 2:1। तो 2:1 आपका एक्चुअली बाई चांस आपका जो ओल्ड रेशियो है वो भी 2:1 ही है। सो ये समझने की गलती मत करिएगा कि जो ओल्ड रेशियो है वही हमारा क्या बन जाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो बन जाएगा हर बार। नहीं, अगर आपको न्यू रेशियो नहीं दिया गया है तो ओल्ड रेशियो आपका न्यू रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो बन जाएगा। लेकिन जब आपको न्यू रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम कैलकुलेट करेंगे ही करेंगे कंपलसरी ओल्ड माइनस न्यू रख करके, और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इस गुडविल को जो कैश में लाई गई है उसे अलॉट करेंगे। तो हमने यहाँ पे कर दिया, बाई चांस सेम आया तो हमने अमाउंट पहले से सेट कर दी थी यहाँ पे 16,88,000। आफ्टर दैट इट इज टू बी सेड value of land building is to be increased by 17,000. If the land and buildings value is increased by 17,000, so what we have to do, हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, बाहर निकाल देंगे 80 और 72 ऑलरेडी था, 70 प्लस बढ़ गया, कितना हो गया 89,000। सो इंक्रीज हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 17,000। and it is to be said regarding machinery that is to be decrease up to, not decrease by, up to मतलब 40,000 की उसकी यहाँ देखिए आप देख सकते हैं मशीनरी 40,000 है, उसे रिड्यूस करो कहाँ तक, 32,000 तक। तो रिड्यूस कितना हुआ 8,000, तो 8,000 जो रिड्यूस हुआ वो हमारा लॉस है एक तरह का, ठीक है। दोस्तों डेबिट साइड दिखा देंगे टू मशीनरी अकाउंट दैट इज 8,000 रुपीज, ठीक है फ्रेंड्स। तो कोई भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही तो डेबिट साइड में, इंक्रीज हो रही तो क्रेडिट साइड में। आगे चलते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज टू बी केप्ट 10% ऑन डेटर्स। नाउ फ्रेंड ध्यान से समझना इस चीज़ को, आप यहाँ सवाल में आपको 24,000 के डेटर्स दिए हुए हैं, 2,000 ऑलरेडी पीडीआर दे दिया है उसने, लेकिन जब उसने आपको बैड डेट्स रिजर्व गिनने की बात करेंगे तो हम 24,000 के ऊपर ही गिनेंगे। तो 24,000 का 10% कितना होगा 2,400, आउट ऑफ विच हम 2,000 ऑलरेडी डिडक्ट कर चुके हैं। तो नाउ यू आर लायबल टू कैलकुलेट ओनली 400 रुपीज एंड बैड डेट्स रिजर्व, ठीक है। तो 2,000 की इफेक्ट अब हम नहीं दिखाएंगे, मतलब ऑलरेडी यहाँ दिखा दी गई है तो वहाँ पर भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखा दी गई होगी। सो अब हम एडिशनल 400 की इफेक्ट देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट टू पीडीआर अकाउंट ओनली 400 रुपीज सोन, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर पीडीआर अगर यहाँ तो बाई चांस बढ़ गई है, अगर सपोज करो कि हमने पहले से एज्यूम करके रखा हो 5,000 रुपीज़ एंड बाद में ऐसा बोले कि 10,000 के हिसाब से 2,400 ही हो रहा है, तो कितना 2,600 रुपीज़ एडिशनली गिन लिया है। तो हम क्या करेंगे, उसकी उल्टी इफेक्ट देंगे। उल्टी इफेक्ट मतलब किस तरह देंगे, हम उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसको 2,600 को दिखाएंगे अगर ऐसा होता है तो, ठीक है फ्रेंड्स। अभी यार अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं डिस्कस करूँगा लेटर ऑन, टिल देन राइट नाउ सी ओवर हियर, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल इज टू बी मेड 1,100 रुपीज़, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आउटस्टैंडिंग बिल है तो पे तो करना ही पड़ेगा, जैसे लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस, तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक बिल या लाइबिलिटी में दिखा दिया, और लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्या दिखाएंगे उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर, ठीक है फ्रेंड्स। दिस इज ऑल अबाउट द एडजस्टमेंट। लास्टली आपको दिया हुआ न्यू प्रॉफिट रेशियो इज देयर इन बिटवीन 3 पार्टनर 2:1 1:2, तो मैंने तो डिस्कस कर लिया पहले से। आपको न्यू रेशियो की जरूरत आपको कब पड़ेगी, सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करने के लिए। फ्रेंड्स वी हैव डन द ट्रायल बैलेंस शीट डेटा आल्सो, वी हैव डन आल्सो द एडजस्टमेंट एंट्री। नाउ ओनली यू हैव टू क्लोज द अकाउंट्स। तो वीडियो को पोज करो, आप भी करिए, मैं भी करता हूँ, और फिर कैलकुलेशन करके वापस मिलते हैं। सो फ्रेंड्स वेलकम बैक अगेन, हियर द सेम सम टोटलिंग करते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल हमें जो मिलता है 17,000 में से हम डिडक्ट करेंगे, सारा डेटा था हमें मिलेगा 7,000 रुपीज़ एट द डेबिट साइड, दिस इज टू बी नोन एज प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। तो दोनों में डिवाइड कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स में, नए पार्टनर को इस साल अभी कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि अभी साल वो बिजनेस में क्या हुआ, ज्वाइन हुआ है, इसलिए उसका प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर डील करेंगे। सो दोनों को ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया 5 से 2:1, तो 5,000 and 2,500 विल बी देयर। उसे कन्वर्ट करेंगे कहाँ पर, ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सो वहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट हो गया, क्लोज करेंगे अकाउंट्स। यहाँ 117, 80, 78,500, 1 लाख रुपीज़ क्लोज करते हैं। डेबिट साइड ट्रांजैक्शन को माइनस करते हैं तो आपको नीचे जो डिफरेंस मिलेगा 1,000, 1 लाख, 1,000, 70,500, 1 लाख रुपीज़, ये सारी आपकी क्लोजिंग कैपिटल डील की जाएगी। और क्लोजिंग कैपिटल का काम कहाँ दिखाएंगे हम लोग, इस पूरी क्लोजिंग कैपिटल हम बैलेंस शीट में दिखा देंगे। 1 लाख 1,000, 70,500 एंड 1 लाख रुपीज़, टोटल 2,71,500 फ्रेंड्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 अकाउंट्स क्लोज। नाउ नेक्स्ट वन कैश अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो क्रेडिट साइड कोई एंट्री नहीं है, डेबिट साइड सारी एंट्री है, 1,26,000 बनता है।
सो वही 126 क्या हो जाएगा आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये कहाँ कैरी करेंगे उसको हम लोग बैलेंस शीट में, तो कैश अकाउंट नीचे दिखा दिया हमने 126,000। फ्रेंड्स स्टॉक के बारे में कुछ भी नहीं कहा था हमने, इसको भले लाइन छोड़ी थी, गैप छोड़ा था, कोई इशू नहीं है, एरो घुमा के बाहर निकालेंगे, सेम एंट्री विल भी देयर, ठीक है। तो टोटल मार देंगे लास्ट में, दोनों साइड का टोटल चेक करेंगे तो इट विल 3,12,600 रुपीज़। सो एट द एंड ऑफ द डे हमें बैलेंस शीट मैच हो जानी चाहिए। इफ योर बैलेंस शीट इज राइट यू गॉट योर 8 मार्क्स। सो फ्रेंड्स दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ 8 मार्क्स, कंपलसरी आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आना ही है एग्जाम में, और बहुत ही इजी काइंड ऑफ क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, सिर्फ 1-2 पॉइंट आपको नए मिलेंगे। सो कल इन नेक्स्ट वीडियो जो हम अपलोड करेंगे उसमें आपको गुडविल के जो फैक्टर्स हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा किस तरह से क्या करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन को आप रिवाइज करिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, सो दैट जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी इंटीमेशन तुरंत मिल जाए, विच विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे, बाय।